Hello students, welcome to the another video of multimedia and media and applications in which we are going to discuss about the animation that would cover the topics principle of animation, animation technique and animation file formats. So let us start with what animation is basically. So just like a video, animation too is a sort of video that is to be created in a way that we consider different elements or objects, and we try to create the effect of motion so that it gives the movement effect or the video effect. So animation means giving life to any object. Basically, when we basically any of the live object is in motion, that is why it is said that animation means live, giving life to an object. And the basic idea behind the animation is to play back the recorded images at a fast rate in order to create the impression of continuous motion. Animation can broadly be divided as 2D and 3D. So basically we can represent any of the picture or graphics in two ways, 2D and 3D. 2D in which we simply cannot give the basic details of any of the object, like the dense, how dense or how basically broad or wide, or that there are so many factors that we cannot represent in the 2D image or in a 2D video. Whereas if we talk about the 3D or 4D or a different sort of high level of techniques, then we can show any element with different dimensions so that it looks or it appears absolutely real. सो बेसिकली एनिमेशन में भी हमारे दोनों ही टेक्निक यूज होते हैं. और एनिमेशन है क्या? एनिमेटेड मोशन पिक्चर्स क्रिएटेड बाय रिकॉर्डिंग अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस. इसमें हम क्या करते हैं कि जो रियल वीडियो है वो बेसिकली हम रियल वीडियो यानी कि जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है वो बेसिकली उसकी बात नहीं करेंगे. एनिमेशन में हम बात करेंगे उन पर्टिकुलर इमेजेस की जो स्टिल होती हैं, यानी कि जो हम खुद से बना रहे हैं, यानी कि एक सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा एनिमेशन में. ऑल एंड ऑल लाइक ड्राइंग्स, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे ड्राइंग हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया या लोग हो गए जो डिफरेंट पोजीशन में हैं और इंक्रीमेंटल मूवमेंट उनमें दिखाना है मोशन इफेक्ट देने के लिए. that when played back no longer appear individually as static image. यानी कि जब हम उसको प्ले करेंगे तो वो हमें ऐसा नहीं दिखे. एनिमेशन है क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस. लेकिन जब हम उन इमेजेस को प्ले कर रहे हैं तो वो हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि अलग अलग इमेजेस हम देख रहे हैं. रादर इट वुड मोर लुक लाइक a scene is going on or a scene is happening, just like in real we used to see. So बट कम्बाइन टू प्रोड्यूस द इल्यूजन ऑफ ब्रोकन अनब्रोकन मोशन. सो वही है कि किस तरीके से हम किस तरीके से मोशन में कॉन्टिन्यूटी में कोई चीज़ चलती जा रही है वो शो करने के लिए वी यूज़ एनिमेशन. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन? सो इफ वी टॉक about a technical or if we talk in technical terms, so we do have 12 principles of animation, but वो फैक्टर आ जाते हैं जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करेंगे. यहाँ पे हम जनरल एस्पेक्ट में प्रिंसिपल की बात करेंगे एनिमेशन के, कि किस तरीके से हम एनिमेशन प्रिपेयर करते हैं. तो वही है कि जब हम डिफरेंट फॉर्म में इमेजेस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनका एक सीक्वेंस को चलाते हैं तो वो हमें मोशन का इफेक्ट देगा. और वो मोशन का इफेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे हमें ये ना लगे कि हम इमेजेस प्ले कर रहे हैं, स्टिल इमेजेस को प्ले कर रहे हैं. रादर इट अपेरेंटली मस्ट बी लाइक कि कोई एक्चुअल सीन है. तो एनिमेटेड सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स विच मूव्स अक्रॉस द screen fast. The illusion of movement is achieved by drawing the object in several different positions in each frame so as to make it look like the object is moving when the frames are played at high speed. तो हम खुद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि अलग अलग मोशन में इमेजेस को कैप्चर किया जिससे कि मोशन इफेक्ट दिखेगा. Like video, animation sequence should be played at a certain number of frames per second. Professional animated cartoons require approximately 30 frames per second of animation. तो अगर हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड वीडियो इफेक्ट दिखाना है तो 30 फ्रेम्स का यानी कि 30 इमेजेस पर सेकंड के हिसाब से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें एब्सोल्युटली जर्क फ्री मोशन उसमें विजिबल हो पाएगा. Now if we talk about the different animation techniques,
So stop motion is one of the technique. The item or character has to be posed in a particular way against the background or backdrop, and then taking the photograph of that object and then move slightly and take another picture of it. So basically क्या हो रहा है कि stop motion में मतलब एक हमने पर्टिकुलर सिनेरियो डिजाइन कर दिया और एक पिक्चर को हमने क्लिक किया. अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मूव कर देंगे और फिर से एक पिक्चर लेंगे, एंड देन वी कंटिन्यू टू डू द सेम अंटिल वी आर डन विद अ पर्टिकुलर वीडियो शूट. तो इसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको अलग अलग तरीके से प्लेस करके और इमेज कैप्चर करते रहते हैं, और जब हमारा एक पूरा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा तो वो मोशन का इफेक्ट देने लगेगा. सो इस तरीके से हम इसमें स्टॉप मोशन में यूज करते हैं एनिमेशन की टेक्निक को. देन क्लेमेशन इज देयर, सेम कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, खाली इसमें क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर क्ले से बने हुए कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं. जैसे हम शॉन द शीप देखते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हमारे क्ले से बने हुए होते हैं, और जो बैकग्राउंड होगा उसे भी हम एक क्ले से डिजाइन कर देते हैं और फिर उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते रहते हैं. यानी कि मैंने एक कैरेक्टर बनाया, अब उसको हल्के से मैं, क्योंकि क्ले है तो आई कैन मूव the hand gesture or the neck gesture or the leg gesture or the I can show the different effect. तो इस तरीके से क्लेमेशन में बस क्या है, खाली कि हम क्ले के कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, बाकी वही है कि अलग अलग तरीके से पिक्चर्स को खींचा जाएगा और उसको कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट में दिखाया जाएगा. सेल एनिमेशन इज देयर, जिसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंट शीट में, ये तो हम शायद पहले चाइल्डहुड में भी करते हैं कि ट्रांसपेरेंट शीट्स जब हमें मिलती है तो वी यूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स, और एक फ्लिप बुक की तरह हम यूज करके उसको फिर मोशन में दिखाते हैं. तो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट्स में हम ट्रेस करते हैं इमेजेस को और फिर उसको शो करते हैं मोशन में. लेकिन ये टेक्निक एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है ऑफ कोर्स. देन वी हैव पेंट ऑन ग्लास एनिमेशन. तो जिस तरीके से ग्लास शीट होती है उसमें हम ऑयल पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं, और ऑयल हमें पता है स्प्रेड होता है बाय द टाइम, तो उस तरीके से फिर वो एक मोशन इफेक्ट देने लगता है, तो उसको हम कैप्चर करते हैं तो इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ इन मोशन. तो ये भी एक टेक्निक है. उसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती हैं. ये कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं. आज की डेट में तो हम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हुए मोशन दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली अभी भी काफ़ी जगह पर ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. इसी तरीके से एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर में जो कि ज़ोइट्रॉप टेक्निक है, उसमें हम एक ड्रम होता है और उसके अंदर वाली साइड पे हम डिफरेंट इमेजेस को ड्रॉ करते हैं, और जब उसको रोटेट करते हैं, ड्रम को मूव करेंगे, जैसे हम काफ़ी सारे फेयर्स मेले वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं इस तरीके की चीज़ों को कि जब वो मूव करता है तो हमें वो एक वीडियो इफेक्ट देता है, जैसे पहले यूज़ होता था जो वो एक अलग से टीवी होते थे, आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ, बट उसमें होता था. तो उसमें यही चीज़ें होती थी कि अलग अलग तरीके से वो मूव करते जाते थे इमेजेस को, और वो एक राउंड बेसिकली एक लूप होता था, बस उसी को वो रोटेट होते जाता था तो रील पूरी कंप्लीट हो जाती थी, तो वो मोशन दिखता रहता था. तो इसी तरीके का कुछ इफेक्ट से भी हम एनिमेशन टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं. तो some popular advanced techniques include motion capture, compositing, software technique like flash animation, GIF animation, After Effect animation and so on. तो और भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए भी हम काफ़ी सारी हम टेक्निक्स का यूज़ करते हुए एनिमेशन इफेक्ट को शो कर सकते हैं. और आजकल तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं एनिमेटेड फिल्म्स हमारी जो आती हैं उसमें हम रियल लाइफ और एनिमेटेड थिंग्स को कंबाइन करके जिन्हें हम कंपोजिट फॉर्म बोल दे रहे हैं, तो उस तरीके का इफेक्ट भी शो कर सकते हैं. एंड अदर टेक्निक्स इंक्लूड 2D, 3D, सैंड एनिमेशन, फ्लिप बुक एनिमेशन, टाइपोग्राफी, पपेट्री एनिमेशन, चकीमेशन, zoetrope animation, and there are lots more other techniques that we can use to create the animation. Now let us talk about certain softwares of animation. So Adobe Illustrator is there, which is used to produce and design the 2D vector graphics, and then Adobe Photoshop is there. We all are aware of the Photoshop, जिसमें हम graphic creation और editing कर सकते हैं, और different जो भी हमारा graphics और design से related जितने fields होंगे तो उन सब में काफ़ी हद तक use किया जाता है. Flash is there, which is again used which is again like vector based software, and that is used in animation and application user interface. And Adobe After Effects is there, which is used in the post-production process of filmmaking and TV production. Then Autodesk Maya, used in 3D animation, modeling, simulation, rendering, and compositing.
Autodesk 3D Max, again used in 3D modeling and film and motion graphics and in games. And Autodesk Mudbox is there, which is used in digital painting, digital sculpting, and softwares. Now, there are certain animation file format, just like we have discussed about the video file formats, and we have discussed about the audio file formats, image file formats. So we do have animation file formats as well. The type of software, the type of tool we use, the type of content we create, उसी तरीके का हमारा file format भी हो जाता है. तो MP4 is there, then MOV, which is created by Apple, then GIF, which is graphics interchange format, CSS, SWF, Shockwave, Flash, then ANI, which is created by the MS Windows. So there are many more others like .png, .eva, .fla, .flc, .fli, .mng, SWI, WebP, etc. that are used for different applications. Web based के लिए हम अलग यूज करते हैं, नॉर्मल जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए अलग यूज़ करते हैं, फिल्म जो बेसिकली वाला होता है हमारा एनिमेशन प्लस वीडियो, उसके लिए अलग फॉर्मेट या अलग टाइप का कंटेंट होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होते हैं. सो बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस वी डू हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स. So that is all for this particular video. In detail, we will be discussing in the live sessions about the different aspects of animations. Thank you.